टू माय चैनल प्यारेस प्रोग्रामिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टैक एंड लिस्ट का कॉम्बिनेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरी एंड स्टैक का कॉम्बिनेशन। कैसे हम डिक्शनरी से डाटा निकालेंगे, बेस्ड ऑन द कंडीशन स्टैक के अंदर डालेंगे। इससे पहले बाहर बहुत एनवायरनमेंट गर्म है, क्यों ना थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पिया जाए, दिमाग को कूल किया जाए, प्रोग्रामिंग शुरू किया जाए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन इज सेइंग मिस्टर प्यारे is having a dictionary containing, look at this, in question it is talking about dictionary containing the names and the salary as a key value pair of 4 employees. We have to keep 4 employees information, and here the name is called the key and salary is the value of the key. Now write the user defined function. I need to create a function, user defined function, to perform the following. I need to perform push operation which is going to add an element to the stack. क्या ऐड करना है? नेम ऑफ द एम्प्लॉय को आपको ऐड करना है। किसके अंदर ऐड करना है? स्टैक के अंदर ऐड करना है। कीज ऑफ द डिक्शनरी, वेयर द नेम इज कॉल्ड कीज ऑफ द डिक्शनरी इनटू द स्टैक, वेयर द करस्पॉन्डिंग, वेयर लग गया मतलब एक कंडीशन आ गया उसमें। कंडीशन क्या है? चलो देखते हैं। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, the dictionary stores the data in the form of pairs of keys and values, where the question talks about name is your key and the salary is your value. Okay, the corresponding value, which is called your salary, is greater than 45,000. I don't need to add all the elements of the dictionary to the stack. Only I will add those names into the stack whose salary is greater than 45,000. This is the condition. अब पॉप फंक्शन के बारे में क्या बोल रहा है? पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक इफ इट इज नॉट एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं है तभी मुझे दिखाना है, अगर एम्प्टी है तो मुझे एक एरर मैसेज दिखाना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। हियर आई एम हैविंग ए डिक्शनरी वेयर द डिक्शनरी एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट. Now each element of a dictionary is separated by comma. Look at this, separated by comma. This is called complete element of a dictionary. This is an element. This is an element. These are called the element of your dictionary. Now inside an element we have a pair of key and value. So this is my key and this is my value, and each key and value is separated by column. Each key and value is separated by column. Now the key is in a string, that's why I have enclosed within double quotes. Now as per the question, it says that suppose this is my stack. Look at this. Suppose I am having this is my stack. Now it says that if the value of the dictionary, that is your salary, is greater than 45,000, then push it onto the stack. So it will check the key. First of all, it will take the key Tanvi and will check its value, that is called 76,000. Now 76,000 is greater than 45,000. That's why the key Tanvi is going to be pushed onto the stack. So I'm having Tanvi. Now after this, it will extract the next element with the help of your key, that is called your Manvi. Now its value salary is 85,000, which is greater than 45,000. That's why again the key is going to be pushed onto the stack. So on the top of Tanvi, we will have Manvi. Now after that, we have the key called Sasmita, whose value is 38,000. Now 38,000 is not greater than 45,000. That's why the key Sasmita is not pushed onto the stack. The next one is your Trinav, whose value is 93,000, which is greater than your 45,000. That's why the key Trinav is again pushed onto the stack. So on the top of Manvi, I am having Trinav. I am writing it in a short form. Okay. Now next one is your Anil, whose salary is 9,000, which is not greater than your 45,000. That's why Anil is not pushed onto the stack. So push operation is over. Now we'll look for the pop operation.
Now the stack is not empty, so that's why I need to extract the elements from the stack. Now at the top of the stack, stack का टॉप में क्या है? आपका त्रिनव है. So आपका टॉप में से त्रिनव निकला और आउटपुट आ गया आपका त्रिनव. उसके बाद नेक्स्ट टॉप में क्या है? मानवी है, इसीलिए मानवी टॉप से निकाला और मानवी को डिस्प्ले किया. उसके बाद तन्वी है, तन्वी को एक्सट्रैक्ट किया और तन्वी को दिखा दिया. Now let's see the process. This is my dictionary and this is my stack. So I need to check this salary based on which the keys are going to be pushed onto the stack. So I'm going to check, that's why I'm using if. Now EMP of K, where EMP is your dictionary name and K is your key. So EMP of K will give you this value called 76,000. Look at this. My key is your Tanvi. Now EMP of key, the value will be your 76,000. Now I will compare it. So that's why I will say greater than 45,000 as per the question. It is true. 76,000 is greater than 45,000. So that's why I will push it onto the stack top position. Now my stack top position contains your Tanvi. That is your key value. Now let's check for the next one. Next one is your EMP of K. Now is your Manvi. Now whose value is your 85,000. Now 85,000 is greater than 45,000, which is true. So that's why at the top of your stack you will have your key, that is called Manvi. So next we'll see, we have the next one is your EMP of K, where K is your Sasmita, that is your key. Now the value is your 38,000. Now it is false. 38,000 is not greater than your 45,000. That's why it is false. Now if it is false, I will not push it onto the stack. अब मैं stack के अंदर इसको push नहीं करूंगा क्योंकि condition इसका false है. उसके बाद फिर चलते हैं next key में. EMP of K is now त्रिनव. Now त्रिनव का value क्या है? 93,000 है. So 93,000 is greater than your 45,000. Again the condition is true. Now अब क्या करना है मुझे? त्रिनव, ये जो की है त्रिनव, इसको मुझे पुश करना है स्टैक के टॉप में. अब स्टैक के टॉप में क्या है? त्रिनव है. फिर नेक्स्ट की क्या है अपना? चेक करते हैं. EMP of K is your अनिल. नाउ अनिल वैल्यू इज योर 9,000. नाउ 9,000 इज ग्रेटर देन 45,000 इज योर फॉल्स. तो इसीलिए ये पुश नहीं होगा स्टैक. चलो अब थोड़ा प्रोग्राम देख लेते हैं. हमने एक स्टैक बना दिया यहाँ पे. एज पर द क्वेश्चन 5 एलिमेंट डाल दिया उसमें. ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया सेकंड एलिमेंट, ये हो गया थर्ड एलिमेंट, ये वाला फोर्थ एलिमेंट, ये वाला फिफ्थ एलिमेंट. और हमने एक एम्प्टी स्टैक भी बना दिया जिसमें हम लोग पुश करेंगे. ना पहले पुश फंक्शन बनाते हैं. डिफाइन, df is the keyword to define a function. Push is the function name as per the question. The name, now इसमें हम एक नेम पास कर रहे हैं जो एक डिक्शनरी का की है और उसको हम अभी अपेंड करेंगे स्टैक के अंदर. इसीलिए हमने स्टैक डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉल ए फंक्शन. अपेंड फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट at the end of the list because I am using the stack as a list. Look at this. उसके बाद ये जो पैरामीटर में आपका नेम आया है उसको हम स्टैक में पुश कर रहे हैं. ठीक है. अब पुश फंक्शन हो गया. पॉप फंक्शन में चलते हैं. df is the keyword to define a function. pop is the function name. हमें कुछ पैरामीटर नहीं चाहिए क्योंकि हमें स्टैक में से निकालना है, स्टैक में रखना नहीं है. और स्टैक हमने ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है तो इसके अंदर स्टैक मिल रहा है ऑटोमेटिकली. अब हमें देखना है कि स्टैक खाली है कि नहीं है. इसीलिए चेक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इफ. किसको चेक करेंगे? स्टैक को चेक करेंगे. इसीलिए स्टैक चेक करना है, इसीलिए डबल इक्वल्स टू क्या? एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट. ये क्या बन गया आपका? इफ स्टैक इज इक्वल्स टू एम्प्टी. अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम मैं क्या रिटर्न करवा रहा हूं? रिटर्न नन. नन मीन्स नथिंग. ना अगर नहीं है, एल्स पार्ट में आते हैं. अगर स्टैक खाली नहीं है मुझे क्या रिटर्न करना है? रिटर्न इज द कीवर्ड टू रिटर्न द रिजल्ट टू द फंक्शन कॉल.
अब stack dot pop, pop function is used to remove the last element of a list. तो लास्ट एलिमेंट को आपको निकाल के वो रिटर्न करवाएगा। तो आपका पुश और पॉप फंक्शन बन गया। अब आपका पुश और पॉप फंक्शन बन गया। अब क्या करना है, स्टैक में से एक एक एलिमेंट निकालना है और उसको चेक करना है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे रिपीटेडली एक एक एलिमेंट निकालना है, इसीलिए मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था स्टैक विथ लिस्ट, उसमें कहा था कि आपका फॉर लूप दो तरीके का होता है, एक इंडेक्स बेस्ड, एक वैल्यू बेस्ड। पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स बेस्ड देखा था, इस बार देखेंगे वैल्यू बेस्ड। आपने नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरा प्लेलिस्ट पाइथन में जाइए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसमें चलते हैं। फॉर की इन ईएमपी, यहाँ पे ईएमपी क्या है आपका, ईएमपी आपका डिक्शनरी है, और ये लूप क्या करता है, डिक्शनरी में से एक एक की निकालता है और इस की में स्टोर कर देता है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया घबराओ मत, आगे मैं आपको ड्राई रन भी दिखा रहा हूं, इसीलिए स्किप मत करो, आगे ड्राई रन देखो, यही वाला कोड आपको प्योरली समझ में आ जाएगा। अब क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं, इसलिए इफ ईएमपी ऑफ की, अब जो की आया है वो की क्या है, द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, वो त्रिनव है, मानवी है, तन्वी है। अब व्हेन आई एम मेकिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिक्शनरी विथ की, ये क्या देता है मुझे, वैल्यू देता है, जो आपका 45,000, 65,000, 90,000 होता है। अब ये जो की निकाला हमने, इसका वैल्यू अगर 45,000 से ज्यादा है तो मैं पुश फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, अब उसमें क्या पास कर रहा हूं, की को पास कर रहा हूं। ये की क्या है, एम्प्लॉय का नेम है। अब ये की कहां जाता है आपका, ये की पास होता है यहाँ पे आपका फंक्शन में, पुश फंक्शन में। लुक एट दिस, यहाँ पे पास होता है ये वाला की नेम में, और ये अपेंड हो जाता है आपका स्टैक में। ठीक है, अब चलो निकालते हैं अभी पॉप फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। व्हाइल ट्रू, दैट मींस इन्फिनिटली आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, पॉप फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। आपका पॉप फंक्शन क्या कर रहा था, स्टैक में से टॉप एलिमेंट को निकाल के दे रहा था। लुक एट दिस, रिटर्न स्टैक डॉट पॉप, मतलब द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और स्टैक का टॉप पोजीशन रिटर्न करवाता है। ठीक है, चलो ये रिटर्न करके कहां पे स्टोर किया, एनए में स्टोर किया। अब मैं बोल रहा हूं इफ एनए नॉट इक्वल्स टू नन, अगर एनए में जो स्टोर है वो नन नहीं है, क्योंकि अगर ये एम्प्टी है तो ये नन रिटर्न करवाता है। पॉप फंक्शन को देखो, अगर ये एम्प्टी है तो ये नन रिटर्न करवाता है, इसीलिए मैं चेक कर रहा हूं। अगर ये नन नहीं है तो मैं नाम को दिखा रहा हूं जो रिटर्न कर रहा है पॉप फंक्शन, एंड इज इक्वल्स टू स्लैश टी। ये क्यों यूज कर रहा हूं, जब हम एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं उसका डिफॉल्ट एंड होता है न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन, तो दूसरा नाम क्या आएगा, नीचे आएगा मेरा, बट आउटपुट में मुझे क्या दिखाना है, टेप स्पेस में दिखाना है, एक एक टेप स्पेस में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एंड इज इक्वल्स टू स्लैश टी, स्लैश एन के बदले आप एक टेप स्पेस दे दो वहां पे। एल्स, एल्स का मतलब अगर नन है, जो नाम रिटर्न करवाया है हमने यहाँ पे, वो अगर नन है तो कम आउट ऑफ द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेक द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। तो अब ये प्रोग्राम का काम खत्म हुआ। सो चलो अब ड्राई रन करके देखते हैं। ये बन गया आपका डिक्शनरी, ये है आपका पुश फंक्शन, ये है आपका फॉर लूप जो पुश फंक्शन को यूज करता है। ठीक है, ये दोनों में तालमेल कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो फॉर की इन ईएमपी, ये क्या करता है, डिक्शनरी ईएमपी से एक एक की निकाल के इसमें स्टोर करता है। तो फर्स्ट की क्या है मेरा, तन्वी। सो चलो ड्राई रन में देखते हैं की क्या है मेरा, तन्वी। ईएमपी ऑफ की क्या है, सो ईएमपी ऑफ की क्या बन गया, की है आपका तन्वी, ईएमपी ऑफ की इज योर वैल्यू, दैट इज योर 76,000। अब कंडीशन क्या है, ईएमपी ऑफ की इज ग्रेटर देन 45,000। अब ये कंडीशन क्या बन गया आपका, ईएमपी ऑफ की इज योर 76,000 is greater than 45,000. It is true.
So that's why I will push it onto the stack. The key that is called, look at this, push key. की में क्या है मेरा, तन्वी. तो ये वाला अभी पास हो गया यहाँ पे नेम में. तो नेम क्या बन गया अभी, तन्वी. अपेंड नेम मतलब अपेंड तन्वी. कहाँ पे, स्टैक में अपेंड हो गया. लुक एट दिस, स्टैक में आपका तन्वी अपेंड हो गया. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है. अब नेक्स्ट की क्या है आपका, मानवी. देखो नेक्स्ट की आपका मानवी है. सो ईएमपी ऑफ की क्या बन गया आपका, ईएमपी ऑफ की इज योर वैल्यू. सो मानवी का वैल्यू क्या है, 85,000. लुक एट दिस, 85,000. नाउ ईएमपी ऑफ की इज योर 85,000 इज ग्रेटर देन 45,000. इट इज ट्रू. सो अगर ट्रू हो गया तो अब क्या हो गया, पुश की मतलब ये वाला की आपका पास हो जाएगा यहाँ पे नेम में. अब की में क्या स्टोर है, देखिए की में है आपका मानवी. तो ये नेम क्या बन गया, मानवी. अब स्टैक डॉट अपेंड मानवी मतलब स्टैक में अभी आके आपका मानवी, देखो स्टैक में आके आपका मानवी स्टोर हो गया. अब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, मानवी को. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब फिर से हम लोग नेक्स्ट की निकालेंगे. नेक्स्ट की क्या है, सस्मिता. अब employee of key, that is your value, the value is 38,000. Now 38,000 is greater than 45,000 is false, so there is no change in the stack. Next element is your Trinav. Now the key is your Trinav. चलो देखते हैं, key is your Trinav. EMP of key is your this one value, that is your 93,000. Now 93,000 is greater than 45,000. It is true. अगर ट्रू है तो ये पुश फंक्शन को कॉल करेगा. अब की में क्या स्टोर है, त्रिनव. अब त्रिनव पास हो गया कहाँ पे, फंक्शन में. फंक्शन में जो पैरामीटर नेम है वो क्या हो गया, त्रिनव. अब स्टैक डॉट अपेंड त्रिनव. तो देखो अपेंड हो रहा है अभी स्टैक में यहाँ पे त्रिनव. अब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, त्रिनव को. तो नेक्स्ट की की तरफ बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट की क्या है आपका, नेक्स्ट की है आपका अनिल. तो ईएमपी ऑफ की अनिल क्या है, 9,000. यहाँ पे देखिए 9,000 है उसका, 9,000. ना 9,000 ग्रेटर देन 45,000 इज फॉल्स. तो अगर फॉल्स है तो ये पुश वाला फंक्शन आपका कॉल नहीं होगा. अगर कॉल नहीं होगा तो स्टैक में कुछ चेंज भी नहीं होगा. ठीक है, अब सब कुछ आपको समझ में आ गया क्लियरली. तो अब आगे देखते हैं पब का फंक्शन के लिए. तो चलो अब देखते हैं ये जो पॉप फंक्शन है और ये जो लूप है, ये पॉप फंक्शन और ये लूप, ये कैसे काम करता है एक दोनों के साथ. तो पहले हम व्हाइल ट्रू के अंदर आते हैं, ये ऑलवेज ट्रू होता है. उसके बाद हम अभी na इक्वल टू पॉप, सो दैट मीन्स ये कॉल करेगा और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा फंक्शन डेफिनेशन पॉप में. अब उसका पहला स्टेटमेंट क्या है, व्हाइल स्टैक इज इक्वल्स टू नल. सो स्टैक में तो आपका एलिमेंट्स है, इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया. इट्स नॉट एम्प्टी. तो कहां पे आएगा ये, एल्स पार्ट में आएगा. एल्स पार्ट में हमने क्या लिख रखा है, स्टैक डॉट पॉप मतलब स्टैक का पॉप करेगा क्या, टॉप मोस्ट एलिमेंट. टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, त्रिनव. इसीलिए ये पॉप फंक्शन अभी क्या रिटर्न करवाएगा, त्रिनव. अब ये त्रिनव कहां पे स्टोर होगा, na में स्टोर होगा क्योंकि रिटर्न करवाया है उसने. अब यहाँ पे आते हैं, na इज नॉट इक्वल्स टू नन. na में नन है क्या, नहीं है. na में आपका क्या है, त्रिनव है. तो त्रिनव इज नॉट इक्वल्स टू नन. ये तो ट्रू हो गया आपका, इसीलिए वो अंदर आएगा. प्रिंट na मतलब स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट निकालेगा और ये प्रिंट करेगा. तो आ गया स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका प्रिंट हो गया यहाँ पे. ठीक है, अब उसके बाद एंड इज इक्वल्स टू स्लैश t. अगर मैं ये हटा दूं तो नेक्स्ट आउटपुट आपका नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा. अब मैंने स्लैश t दे दिया तो टेप स्पेस आ गया यहाँ पे. दूसरा आउटपुट अभी आपका यहाँ पे आएगा. सो स्लैश n को सप्रेस कर दिया गया है. तो उसके बाद क्या होगा, फिर से व्हाइल ट्रू एग्जीक्यूट करेगा आपका. सो व्हाइल ट्रू, ये फिर से ट्रू हो गया. फिर से वही प्रोसेस दोहराना है हमें. na इज इक्वल टू पॉप, तो कंट्रोल इज ट्रांसफर टू फंक्शन डेफिनेशन. अब स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी. अब देखिए आपका स्टैक में तो एलिमेंट है, स्टैक में एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका फॉल्स हो गया. तो
तो कंट्रोल कहां पे जाएगा, एल्स पार्ट में। अब स्टैक डॉट पॉप ये क्या करवाएगा, रिटर्न करवाएगा स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट। अब देखो ये रिटर्न करवा रहा है, स्टैक टॉप में क्या है अपना, मानवी है। अब देखो ये रिटर्न करवाया मानवी, मानवी कहां पे स्टोर हुआ है, एनए में। अब इसको चेक करो, मानवी इज नॉट इक्वल टू नन, ट्रू। नन मतलब खाली होता है, बट एनए में तो आपका स्टोर है मानवी, सो एनए नॉट इक्वल टू नन इज ट्रू। तो अब क्या प्रिंट करवाएगा, एनए कहां से प्रिंट करवाएगा, स्टैक का टॉप से। देखो आ गया, स्टैक का टॉप से आ गया और आउटपुट में ये डिस्प्ले भी हो गया विथ ए टेप स्पेस। ठीक है, तो फिर से व्हाइल ट्रू, अगेन इट इज ट्रू, तो फिर से कंट्रोल ट्रांसफर हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन में। अब स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी नहीं है क्योंकि स्टैक में भी एलिमेंट है आपका, सो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो कहां पे जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। और फिर से रिटर्न स्टैक डॉट पॉप, तो क्या रिटर्न करवाएगा, स्टैक टॉप मोस्ट एलिमेंट यो तन्वी। सो देखिए स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट तन्वी आपका कहां पे स्टोर हुआ, एनए में। अब एनए नॉट इक्वल टू नन, ये क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि इसमें तन्वी स्टोर है। तो क्या होगा, प्रिंट एनए कहां से निकालेगा, स्टैक का टॉप से निकालेगा और डिस्प्ले करवाएगा। देखो आ गया और ये डिस्प्ले भी हो गया with /t, that is your tape space। अब स्टैक एम्प्टी है, ध्यान दो अभी यहाँ पे फिर से कंट्रोल कहां पे गया, while true में गया। तो देखो while true फिर से पॉप फंक्शन कॉल हुआ, डेफिनेशन के पास आ गया। अब ये चेक होगा, स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी। देखो स्टैक अपना एम्प्टी है, स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी इज ट्रू, ट्रू मतलब यहाँ पे आ गया, रिटर्न नन। अब देखते हैं रिटर्न नन, आ गया आ गया आ गया। एनए में क्या स्टोर है, अभी नन स्टोर है, नन नॉट इक्वल टू नन, ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ये आ गया अभी एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में अपना क्या है, ब्रेक, ब्रेक मीन्स टू कम आउट ऑफ दिस लूप। अब हम लूप से बाहर आ गए, अपना प्रोग्राम खत्म। अगर आपको मेरा ये सारा एग्जाम्पल्स, ये प्रोसेस और इसमें जो ड्राई रन किया गया, ये सब कुछ पसंद आया तो किस बात के लिए वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ सब्सक्राइब मारो, ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ, और एक बात तो मैं बताना भूल गया, अगर आपको किसी और वीडियो की जरूरत है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है ना, वहां पे आप लिखो, मैं वीडियो बनाऊंगा।